कहने को तो सब ये कहते थे कि तुम पहले आईआईटी क्लियर करो, फीस उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन दे देमसेल्फ नो कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 99 ऑफ देयर ओन स्टूडेंट्स आर नॉट गोइंग टू क्लियर जेईई, एंड व्हाट अबाउट देम? नथिंग. I have the work to sell a batch for 4,000 in class 11, 4,000 in class 12, 4,000 in drop year, 5,000 second drop year, and then go fuck off. That's what's happening right now since the online education has come to the new era. You are told that clear JEE and then fees बाद में देखा जाएगा. लेकिन the same student, 99 students out of 100 are going to not get into IITs and they have to pay 2.5 lakh per year of engineering fees. ये बात उनको कोई नहीं बता रहा है. सब सिर्फ उन 1% स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कि आईआईटी क्लियर करने वाले हैं. मोस्ट प्रोबेबली दे आर नॉट इवन वाचिंग योर वीडियो. तुम उनको ये बात बता ही नहीं रहे. एंड इस कारण से सो मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने कि पीसीएम लिया, जेई की तैयारी की, जस्ट बिकॉज दे वांट टू डू इंजीनियरिंग, अब उनके पास 2.5 लाख रुपए है नहीं. दे आर फोर्स टू क्विट इंजीनियरिंग, दे आर फोर्स टू टेक लोन्स. लेकिन वहीं पे अगर ये बात तुम उन्हें पहले बताए थे तो एटलीस्ट दे कुड हैव थॉट कि भाई इंजीनियरिंग इज कॉस्टली. Well, leave that point. Let's go to a way worse side of online education. This video is going to expose the hooked system जिसमें कि ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स तुम्हें hooked रखते हैं in such a way that even 1 week before JEE you will feel like you are going to qualify JEE जबकि तुम 50% के लायक भी नहीं हो. When you go to an offline coaching, every single student is here to clear JEE. ठीक है. After 1 or 2 months, after maybe like a half of the session, half of the students are like, okay, we are going to study, and half are like, okay, we can't clear JEE, let's leave it, we are going to enjoy our life, enjoy the 2 years whatever. ठीक है. So basically some of them are studying and rest are enjoying. ठीक है. But in online education there is way worse side for the students who can't study. देखो ऑनलाइन में भी हर एक बच्चा जो है वो फर्स्ट वीडियो पे ये कमेंट करता है कि आई एम गोइंग टू गेट JEE एडवांस ईयर 1, but the students who can study are still taking the live classes, and the student who can't study, rather than enjoying his life, he is way more depressed than the student who are studying. He's trying to study but he can't study because the system has hooked him in such a way that he is believing that he can clear JEE even by studying in the last week. Let me tell you what exactly this hooked system is. Look, let's say it's April 2026. You purchased a batch called what, a 1.0 batch. Okay, now in this 1.0 batch you have taken like 15 to 20 live classes on the daily basis, and इसके बाद somehow you get 1 class backlog, 2 class backlog, and so your backlog kept on increasing. ठीक है. Now इस बात को तुम्हें ये बात बताने के लिए कि having a backlog is normal, you must have to be present in a live class. ओके, क्योंकि अगर तुम बैकलॉग लेके बैठे हो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, लेकिन तुम्हें ये बात बताने के लिए भी तो तुम्हें क्लास लेनी पड़ेगी. अब तुम क्लास ही नहीं ले रहे तो तुम्हें ये बात रियलाइज़ कौन कराएगा? एंड पता है तब क्या होता है, जब तुम 1 महीने रेगुलर क्लास ली, लाइव क्लास, एंड देन 1 महीने तुम बैकलॉग्स के साथ बहुत धीरे-धीरे क्लास कर रहे हो, तुम्हारा बैकलॉग इंक्रीज़ होता आ रहा है, ठीक है? इसके बाद rather than you trying to increase your pace of study and catch up to the batch, they are going to introduce a 2.0 batch to keep you hooked. Now, you might have studied unit and dimension, basic maths, straight line and plane, and the batch is currently on work point or gravitation. पर वहीं पर तुम्हारे पास आता है 2.0 बैच. अब इस बैच के आने पर तुम जिसने कि 4 चैप्टर अच्छे से कर रखे हैं, इवन इफ नहीं करे 3 एटलीस्ट यूनिट एंड डायमेंशन तो कर रखा है, बेसिक मैथ्स तो कर रखा है, बट नाउ जैसे ही 2.0 बैच आता है तुम्हें ये लोग कहेंगे कि अगर तुम्हारा बैकलॉग हुआ, अगर तुम्हारा पोर्शन छूट गया तो गो स्टार्ट विद 2.0 बैच. अब क्या होता है, अब तुम जो तुमने पढ़ा है वो तो तुम भूल गए क्योंकि तुम फिर से पढ़ोगे स्टार्टिंग से. अब तुम UND पढ़ोगे, उसके बाद बेसिक मैथ पढ़ोगे, इसके बाद तुम इसमें भी तुम्हारा बैकलॉग बन जाएगा. ठीक है. बैकलॉग बनना इज़ अ नॉर्मल थिंग जो कि तुम कभी भी रियलाइज़ करोगे ही नहीं. इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तुम्हारे पास आएगा प्रेफरेंस की बैकलॉग तो दोनों में ही है. मैं किसी भी बैच की जिस बैच का टीचर मुझे पसंद है मैं उससे पढ़ूंगा. ठीक है. 1 महीने 2 महीने तुम फिर से स्लो पेज में पढ़ते हो. ठीक है. एंड स्टडिंग इन स्लो पेस इज कम्प्लीटली नॉर्मल इवन इन ऑफलाइन कोचिंग. तुम्हारा समटाइम्स ऐसा होगा कि तुम स्लो पेस में पढ़ रहे हो, तुम्हारे बैकलॉग से तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो. ठीक है. तो दैट्स अ नॉर्मल थिंग, लेकिन ये लोग तुम्हें रियलाइज नहीं होने देंगे कि नॉर्मल थिंग है. ठीक है. दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट इज नॉर्मल थिंग बट दे आर टेलिंग दिस इन देयर क्लासेस. ठीक है. और क्लासेस तुम ले नहीं रहे. सो तुम सेकंड 2.0 बैच लिया, 1-2 महीना पढ़ा, उसके बाद दे आर गोइंग टू लॉन्च अ 3.0 बैच. एंड द प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि देखो वो लॉन्च कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने कि अभी तक डिसाइड नहीं करा था कि उन्हें जेई करना है या नीट करना है. ठीक है. लेकिन वो लोग तुम्हें ये बैच फ्री में दे देंगे कि भाई लो पकड़ो, तुम भूख रहे हो भाई, तुम बैच चेंज करते रहो, ऐसे तुम क्लास 11 बिता दो, 4 चैप्टर पढ़ो, हो गया खत्म. भाई क्या मतलब है तुम्हें कि तुम फ्री में बैच प्रोवाइड कर रहे हो? आर योर टीचर्स इन द फर्स्ट बैच आर नॉट
क्वालिफाइड एनफ कि तुम्हें दूसरे तुम्हारे पास ये चॉइस आ रही है कि तुम टीचर चेंज करो। भाई जब तुम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं होती, जो टीचर पढ़ा रहा है पढ़ो, नहीं पढ़ना भाड़ में रहो। भाई तुम टॉप क्लास टीचर्स लेके आए हो, गिव देम वन सिंगल बैच, मत दो और बैच। भाई एनफ टेस्ट यू आर प्रोवाइडिंग, एनफ डीपीपी यू आर प्रोवाइडिंग, व्हाट्स द नीड ऑफ अनदर बैच जस्ट टू कीप द स्टूडेंट हुक इन द सिस्टम। थर्ड बैच में क्या होता है, 3 क्लासेस होती है पर डे। वो बच्चा जो कि एक क्लास नहीं ले पाता, अब वो बच्चा 3 क्लासेस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। वही होता है, 1-2 महीना चलता है थर्ड बैच भी, उसके बाद ये लोग एक फोर्थ बैच लेंगे एज समथिंग कॉल्ड सो कॉल्ड क्रैश कोर्सेज। अब क्रैश कोर्स बच्चा ज्वाइन करेगा ये सोचे कि भाई क्रैश कोर्स से भी क्लियर हो सकता है। मेरे केमिस्ट्री वाले सर से, जो जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ता था ड्रॉप ईयर में, ही सेड कि भाई क्रैश कोर्स इज द वर्स्ट थिंग जो कि बच्चे को प्रोवाइड करी जा सकती है। इज़ लाइक ही हैड टू टेक सम क्रैश कोर्स बैच, ही न्यू कि पढ़ा तो वो सब देंगे लेकिन बच्चे को समझ नहीं है क्रैश कोर्स लेना, बच्चे का वैसे भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स आएगा। इस टाइम पता है तुम कौन सी वीडियोस देख रहे हो? इस टाइम पे तुम देख रहे हो क्लास 11th वेस्टेड टाइप की वीडियोस। क्रैश कोर्स आएगा तुम्हारा ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी के अराउंड, ठीक है, जो कि मार्च अप्रैल तक चलेगा। और इस टाइम पे तुम्हारा अगला फेज स्टार्ट होगा, वो फेज है तुम्हारा क्लास 11th वेस्टेड व्हाट टू डू। अब देखो बेसिकली देयर इज एब्सोल्युटली नो वन हु कैन टेल यू कि तुम्हें क्या स्ट्रेटजी से पढ़ना है, ठीक है। अब तुम जो है तुम यूट्यूब पे जाओगे और ये सर्च करोगे क्लास 11th वेस्टेड, सबका वेस्ट होता है, मेरा भी वेस्ट हो गया, अब मुझे क्या स्ट्रेटजी पढ़ना है। जबकि हर एक बच्चा अलग अलग लेवल पे पढ़ रखा होता है, लेकिन वो सभी उसी एक गंगा में घुल जाता है कि भाई शुरू से मुझे ये क्रैश कोर्स करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। एट दिस टाइम वो पर्टिकुलर बच्चा किस चीज़ पे फोर्स होएगा, टू टेक वन शॉट लेक्चर्स। अब वन शॉट जो है वो देयर इज नथिंग लाइक वन शॉट, ठीक है। फॉर रिवीजन पर्पज वन शॉट डज एग्जिस्ट, पर इन ऑफलाइन कोचिंग्स वो भी नहीं होता, ठीक है। रिवीजन करनी है तो टेक आउट योर नोट्स, टेक आउट योर शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज। वन शॉट जैसी चीज़ बेसिकली एग्जिस्ट करनी ही नहीं चाहिए। अब वो बच्चा वन शॉट लेगा, क्वेश्चन करे नहीं, हर अगले दिन एक एक वन शॉट ले रहा है, क्वेश्चन करने नहीं। और वो वन शॉट पता है किसे लेगा, वो वन शॉट लेगा उन बच्चों से, वो 11th का बच्चा वो वन शॉट लेगा जो कि 12th वाले और ड्रॉपर्स वाले बच्चे ले रहे हैं। समझ रहे हो, लाइक ही इज टेकिंग डेली वन वन शॉट। क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं। 11th क्लास होगी बेस्ट, ठीक है। 11th क्लास में पासिंग मार्क्स लाएगा वो बच्चा, स्कूल समहाउ पास कर ही देता है। इसके बाद आएगी क्लास 12th और बिल्कुल सेम चीज़ रिपीट होगी, ठीक है। 1.2 आएगा, 2.0 आएगा, 3.5 आएगा, क्रैश कोर्स आएगा, स्ट्रेटजीज आएगी, हाउ टू क्रैक JEE इन 6 मंथ्स, कुछ नहीं पढ़ा 6 महीने में क्लियर करो। और फिर वो बच्चा इसी चीज़ में हुक रहेगा, ठीक है। ऑनेस्टली आई डोंट थिंक इसमें बच्चे की गलती है, ठीक है। और तुम्हें पता है, मान लो तुमने 4,000 रुपये लिए, मान लो देर इज समथिंग लाइक अ काउंसलर और वॉट एवर। इस काउंसलर का कॉल तुम्हें पता है कब आएगा? इस काउंसलर का कॉल तुम्हें तब आएगा जब तुमने क्लास 11th का बैच लिया है, क्लास 11th तुम्हारी खत्म हुई, अब तुमने क्लास 12th का बैच नहीं लिया, तो इस बंदे का कॉल आएगा कि तुमसे बैच क्यों नहीं लिया, मैं तुम्हारा काउंसलर हूँ। ये नहीं पूछेगा कभी कभी तुम्हारे पास इस चीज़ का कॉल नहीं आएगा कि तुम लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे, और द रीज़न कि तुम्हारे बैकलॉग्स बन रहे हैं, नहीं, इस बात के लिए कॉल नहीं आएगा। कॉल तुम्हारे पास इस बात के लिए आएगा कि तुमने अगला बैच नहीं लिया। क्लास 12th चलती है, क्लास 12th ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। पता है क्या होगा, अब आएगा तुम्हारे पास 1-2 महीने का क्रैश कोर्स, कुछ नहीं पढ़ा 2 महीने में पढ़ा देंगे। दिस इज नॉट अ स्टोरी ऑफ वन कोचिंग। देखो मैं उस कोचिंग की बात करूँ जिससे मैंने खुद पढ़ा है, ठीक है, जिससे मोस्ट ऑफ द बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हर सिंगल ऑनलाइन कोचिंग में ये केस होता है, ठीक है। एवरी सिंगल ऑनलाइन कोचिंग हैज़ द सेम स्टोरी। It's not a hate video. It's what I have experienced and what most of the students are experiencing. 99% of the students ये experience करते हैं, ठीक है। सो 12th क्लास हमारी चल रही है, जेई से 2 महीने पहले और अक्टूबर या नवंबर में क्या होता है, एक नया कोर्स आता है जिसमें कि वो लोग एक एक दिन में एक एक चैप्टर तुम्हारा खत्म कर दे रहा है। वो चैप्टर जो कि तुम्हारे बैच में एक एक महीना चला था, वो तुम्हारा एक दिन में हो जाएगा। यू आर सम सुपर नेचुरल ह्यूमन, ठीक है। रेदर देन स्टूडेंट रिवाइजिंग फ्रॉम हिज नोट्स, अब वो बंदा भी इन ऑनलाइन लेक्चर से रिवाइज करने बैठ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद पता है क्या होता है, इसके बाद हम लोग ये सोचते हैं कि भाई यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर में 2.1 मिलियन व्यूज़ कैसे आ गए। इमेजिन 10 लाख 20 लाख बच्चे जेई से 2 महीने पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, वो वन शॉट से। इसका रीज़न यही है कि तुमने ही बच्चे को फोर्स करा है यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने की, 10 बार पढ़ने की आदत डाल दिया तुमने उसको। इसके बाद वो कुछ दिन के लिए ये वैसे ही फॉलो करेगा और उसके बाद वो ये भी गया, यहाँ से भी चले गया वो। इवन इफ ही वुड हैव स्टडी, आई डोंट थिंक एनीवन कैन प्रोसेस दिस मच ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर उसने सारे लेक्चर भी दिए होते तो भी वो इतना प्रोसेस नहीं कर पाता। ह्यूमन ब्रेन हैज़ अ कैपेसिटी। अब यही आता है, बचपन से तो यही आदत डाल रखी है कि आई एम 90% स्टूडेंट, बट लास्ट के 90 लाख बच्चे तो फालतू, लास्ट के 9 लाख बच्चे तो फालतू है, आई एम गोइंग टू बी इन टॉप 1%। अभी तक इस बच्चे को ये रियलाइज़ नहीं होता कि यू हैव स्टडीड एब्सोल्युटली नथिंग। क्वेश्चन पेपर करके आओ एंड एट द एंड जब तुम्हें पता लगे तुम्हारे 50% भी नहीं आए, फिर रियलाइज़ होता है कि कैसे 2 ईयर्स वेस्ट हुआ है। जो ऑफलाइन वाला बच्चा जिसने नई पढ़ाई करी थी वो मस्ती करा, इन्जॉय करा,
तुम जो है एक डिप्रेशन वाली लाइफ जी हो, वे वर्स लाइफ देन समवन हु हैज क्लियर्ड जेडबल एंड इज केप्ट हुक्ड इन सच अ इन द सिस्टम। एंड इसके बाद क्या होता है, इसके बाद समवन कम्स लाइव एंड बी लाइक नहीं हुआ कोई बात नहीं, ड्रॉप लो। और ड्रॉप ईयर में क्या होता है, सेम, बिल्कुल सेम चीज़ रिपीट होती है। आई जस्ट हैव वन रिक्वेस्ट। लुक, देर इज़ नो नीड टू गिव 2 or 3 बैचेस टू स्टूडेंट्स। एक बैच दिया है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना निकल जाओ, नहीं पढ़ना जेई छोड़ दो, ठीक है। देर इज़ नो नीड टू कीप देम हुक्ड इन द सिस्टम ऑफ थिंकिंग दैट दे आर गोइंग टू क्लियर जेडबल बाय जस्ट स्टडिंग 4 chapters. दैट्स इट। आई डोंट थिंक, आई थिंक दैट्स इट। जितना भी मुझे बोलना था मैं बोल चुका हूँ। एंड अगर तुम जो हो वो इस लेक्चर में चल रहे हो, इस सीरीज़ में चल रहे हो, इस हुक सिस्टम में चल रहे हो, तो प्लीज़ छोड़ दो, जेडबल मत छोड़ो, इस सिस्टम को फॉलो करना छोड़ दो। एक चीज़ स्टार्ट करो, वन शॉट्स भूल जाओ, जितना हो रहा है उतना पढ़ो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा मत करो, लेकिन जिस एक बैच को पकड़ लिया है उस एक बैच से पढ़ो प्लीज़। अगर जेडबल क्लियर हो सकता है बाय एनी चांस तो तुम करो, उसका सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है। और 99% ऑफ द स्टूडेंट जो है ऑनलाइन में वो टेस्ट ही देना छोड़ देते हैं। अगर तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो तो देट्स नो पॉसिबल वे कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। नो चांस कि तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला है। टेस्ट देना स्टार्ट करो, 10 नंबर आएंगे, 20 नंबर आएंगे, वही नंबर आएंगे तो तुम्हारे जेई में आने वाला है, ठीक है। तो टेस्ट देने से मत डरो। एंड आई हैव रिक्वेस्ट फ्रॉम सिस्टम एज वेल कि प्लीज़ फोकस, प्लीज़ दे, एंड आई हैव अ रिक्वेस्ट फ्रॉम द सिस्टम कि प्लीज़ स्टॉप गिविंग मल्टीपल बैचेस टू स्टूडेंट्स, स्टॉप गिविंग वन शॉट लेक्चर्स एंड मेकिंग द टीचर्स से कि अगर तुमने नहीं पढ़ा है स्टिल यू कैन गेट सम नॉलेज। ये बात फालतू है बिल्कुल, हमें ही पता है, तुम्हें पता है, ठीक है। एंड ऑल्सो द लास्ट थिंग आई वांट टू से इज गेट मोर सोशल, ठीक है। हैव सम फ्रेंड्स जो कि जेई कर रहे हो, ठीक है, तो ताकि तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर सको कि इन ऑनलाइन सोशल लाइफ तुम्हारी खत्म हो चुकी है, तुम्हारा दिन स्टार्ट होता है, लव लाइफ स्टार्ट होती है, सब कुछ तुम्हारे फ़ोन में से मिल जाता है, ठीक है। तो गेट अ लिटिल बिट सोशल, ट्राई करो कि गेट अ डिस्कॉर्ड कम्युनिटी और समथिंग जिसमें कि तुम लाइव वीडियो कॉल में ये डिस्कस कर सको, आज मैंने इतना पढ़ा, आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, ठीक है। दैट्स इट।